Welcome student to the next class of magnetic effects of current. Today we will do some objective numericals from different competition on the topic force between parallel current carrying wires, so that you will come to know about the examination pattern on this topic. तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Three long straight parallel wires carrying currents are arranged as shown in the figure. The force experienced by ten centimeter length of wire Q is R carries 20 ampere current, Q carries the current 10 ampere, and P carries the current 30 ampere. The question has got, अब देखिए हमें Q पर फोर्स कैलकुलेट करना है. Q पर यहाँ पर स्टूडेंट्स दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स P लगाएगा और एक फोर्स R लगाएगा. और आप देखिए R और Q में डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, so this force will be of repulsion, FRQ. FRQ is the force by R on Q. Force by R on Q. Similarly, on Q, P will also apply force. Q and P also carry the current in opposite direction, so that will be a force of repulsion. So this is FQP. Since the two forces are opposite to each other, so to get the resultant of these two forces, we need to find the we need to subtract the forces. तो सबसे पहले हम FQP को कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट FQP. तो देखिए FQP को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है म्यू 0 अपॉन 4 पाई टू करंट इन Q, current in P, let distance between P and Q, let it is RPQ. तो FQP को हम कैलकुलेट कर लेंगे 10 to the power -7. Q में करंट है 10 एम्पियर, P में करंट है 30 एम्पियर, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट किया. एंड डिस्टेंस बिटवीन P and Q इज 10 सेंटीमीटर. अगेन सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर. तो ये 100 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा. सो FQP विल बी
FQP will be 2 into 30, 60 into 10, 600 into 10 to the power minus 7, 6 into 10 to the power minus 5 Newton towards left. अब हम FRQ कैलकुलेट करेंगे. Now we'll calculate FRQ. Mu 0 upon 4 pi 2 IR IQ length distance between R Q. तो एफ आर क्यू को कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू करंट इन आर. देखिए कितनी करंट है, 20 एम्पियर. करंट इन क्यू इज 10. लेंथ 10 सेंटीमीटर में निकालना है. 400 सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में. नाउ यू फाइंड दैट डिस्टेंस बिटवीन R and Q is 2 centimeters. So this 2 is again centimeters converted into meter just by dividing 100. So this will cancel. Now this 2 will cancel by this 2. So we will get FQR as 2 into 20 into 10, 200 into 10, 2000 into 10 to the power minus 7, 2 into 10 to the power minus 4 Newton towards right. So this can be written as 20 into 10 to the power minus 5. It is clear that FQR is greater than FQP. FQP इतना आप नोट कर लीजिए. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन में. And once you are done with it, tell me. अब दो देखिए, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हम रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो दैट क्लियरली टेल्स अस नेट फोर्स इज FQR माइनस FQP. आप इसको कैलकुलेट करें, 20 में से 10 माइनस होगा तो आएगा 14 into 10 to the power minus 5 Newton. 14 into 10 to the power minus 5 Newton. So this is a very simple numerical. ऐसे दो तीन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा. और if you go through the papers, such numericals are very common. Okay, so you are done with it. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. इस पर बेस हम दो क्वेश्चन और करेंगे. Then we will move to the next topic.
Question number 2. 3 long straight and parallel wires carrying currents are arranged as shown in the figure. The wire C, which carries a current of 5.0 ampere, is so placed that it experiences no force. The distance of wire C from wire D is, तो सबसे पहले डायग्राम बना लें. This is wire D. It carries a current of 15 ampere, and then this is wire C. It carries a current of 5 ampere. Then we'll have wire D, B, carrying a current 10 ampere. Distance between D and B is 15 centimeter. The question has got 4 answers. 9 centimeter. Second answer 7 centimeter. Third answer 5 centimeter. Fourth answer 3 centimeter. अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे. हमें कहा गया है, we are told that C does not experiences any force. C पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है. इसका मीनिंग क्या है? The net force on C is 0. ऐसा तभी पॉसिबल है. It is only possible when the two forces act on C in which direction? Opposite direction. तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे C पे फोर्सेस कौन कौन लगाते हैं. देखिए D भी C पर फोर्स लगाएगा, पर उसका नेचर क्या होगा? अट्रैक्शन. That is FDC. Will also apply the force on C. And observe, B and C carries the current in same direction, so it will attract FBC. If net force has to be 0, then FDC should be equal to FBC. Let the distance between D and C is x. If this distance is x, then this distance will be 15 minus x. क्योंकि D और B के बीच में डिस्टेंस है 15. अब देखिए फोर्स हम निकालते हैं. μ0/4π2. करंट इन D 15. DC निकाल रहे हैं. करंट इन C 5. अब लेंथ नहीं दी गई. लेट लेंथ इज L. L लेंथ. डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर. 15 इंटू नॉट 15 सेंटीमीटर x. तो अब हम इसको ऐसा करेंगे. तो x सेंटीमीटर को भी स्टूडेंट्स मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो x इंटू 10⁻⁻². अब राइट साइड में आइए. BC μ0/4π2. current in B. Current in B is 10. Current in C is 5. Length is L. Distance
15 minus x into 10 to the power minus 2 because we are converting centimeter into meter. अब देखिए, अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए ये कैंसिल हो गया, तो 2 भी कैंसिल हो गया, L भी कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल होगा भाई, 10 to the power minus 2 भी कैंसिल हो गया. तो what we are left with? We are left with 15 into 5, 75 divided by x. राइट साइड में 50 अपॉन 15 माइनस x. 25 से कैंसिल कर दीजिए. 25 2 जा 50, 25 3 जा 75. So you will get it 3 upon x equal to 2 upon 15 minus x. Cross multiply. 2x equal to 45 minus 3x. 5x equal to 45. X equal to 9 centimeter. So the our answer is first. तो आप इसको नोट कर लीजिए. आई एम होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा. You must have understood this question. 2 या 3 क्वेश्चन करने से आपको फॉर्मूला कंसेप्ट क्या हो जाती है, पूरी तरह से क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है. When you are done with this, please inform me. So this is a very simple concept. Okay. तो आपने इसे कर लिया, अब आपको समझ में आ गया. अब देखिए हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. What is the net force on square coin shown in the figure? The question has got 4 answers. 25 into 10 to the power minus 7 Newton towards wire. Second option, 25 into 10 to the power minus 7 Newton away from wire. Third option, 35 into 10 to the power minus 7 Newton towards wire. Fourth option, 35 into 10 to the power minus 7 Newton away from wire. अब देखिए, अब हम इसको बहुत आसानी से स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं. ये देखिए ए बी सी, हमने स्क्वायर कॉइल को नेम किया ए बी सी डी. As per the theory, we know how to calculate the force between parallel current carrying wire. तो देखिए ए बी एंड दिस इज ए लॉन्ग
गिवन है ना, एक मिनट पहले इसको पूरा कर लेने दीजिए। लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो देखिए थोड़ा हम इसको लिखेंगे। लॉन्ग करंट कैरिंग वायर will apply force on AB and CD in opposite direction। देखिए अट्रैक्शन, रिपल्शन। इसको आप नोट करिए सबसे पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो बीसी पर फोर्स नहीं लगाता है? डेफिनेटली वो बीसी पर भी फोर्स लगाता है। मान लीजिए वो बीसी पे फोर्स लगाता है, बीसी पे फोर्स लगाएगा तो 2 एम्पियर की जो मैग्नेटिक फील्ड है स्क्वायर लूप पे एक्ट करेगी एज ए क्रॉस। अगर हम बीसी में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो हम इंटीग्रेशन से उस फोर्स को क्या कर सकते हैं, उस फोर्स को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्रॉस की फील्ड है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे एफ बी आई, तो हमें पता चलेगा कि एक नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है बीसी पर। लेट इट इज एफ डैश। सिमिलरली एडी विल एक्सपीरियंस द फोर्स एफ डैश इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसलिए हम लिखते हैं फोर्सेस अप्लाइड बाय वायर on BC and DA will cancel each other। आप फ्लेमिंग के रूल से निकाल सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले आप राइट हैंड पाम रूल लगाइए, राइट हैंड पाम रूल लगाइए, 2 एम्पियर की जो मैग्नेटिक फील्ड बीसी पे एक्ट करेगी वो क्रॉस करेगी। फिर बीसी पर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाइए एफ बी आई, देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Since F1 is greater than F2, so because पास में है, डिस्टेंस कम है। देखिए ए बी और लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के बीच में डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, और सी डी और लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के बीच में डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। सिंस F1 इज ग्रेटर देन F2, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्क्वायर लूप इज F1 माइनस F2। अब हम F1 और F2 को कैलकुलेट करेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम F1 और F2 को कैलकुलेट कर लेंगे। Then we'll calculate F1 and F2. So it is very important that you need to solve the questions। अब देखिए F1 is the force between 2 एम्पियर and 1 एम्पियर।
तो चलिए हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 एम्पियर और 1 एम्पियर के बीच में फोर्स है, तो नेट फोर्स आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, उसको हम बाद में देखेंगे। 2 इंटू और लेंथ है, जिस लेंथ पर ये फोर्स लग रहा है वो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻2 माइनस F2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई F2 2 और 1, 2 इंटू 1, डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2 एंड डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻⁻2। इसको नोट कर लीजिए। अगली स्लाइड में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट स्लाइड। तो आपने इसे नोट कर लिया, ओके। तो देखिए क्वेश्चंस आप करेंगे तो फिजिक्स हमेशा इंप्रूव होगी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये ऐसा आ गया था, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻2, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2, और ये डिस्टेंस हो गया 12 सेंटीमीटर, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर हम कॉमन ले लेंगे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, यू आर लेफ्ट विथ 2 से 2 कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ 2 इंटू 10 20, और ये 2 है, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा 6 टाइम्स, और ये 2 इसको फिर कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स, -10/3, that is 10⁻⁻7, 60, 50/3, 5/3 इंटू 10⁻⁻6। अब आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये हमें आंसर मिल रहा है कि नहीं, -7 मिल रहा है आंसर। मस्ट हैव डन सम मिस्टेक। 2I1I2 L अपॉन R 2 सेंटीमीटर। देखिए यहीं कहीं कैलकुलेशन में हमसे गलती हुई होगी, एक मिनट, लेट्स डू इट नाइसली। 10⁻⁻2 तो कैंसिल हो गया, टू से 2 कैंसिल, 2 इंटू 10 20, 2 से, अब ये आपका देखिए हम इसे यहाँ कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, फिर इस 2 से 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, so it will be -10/3, yes, so force will be 50/3 into, to make a correction, Newton towards wire. Towards wire. तो आप इसे नोट कर लीजिए।
यस। ओके, ये बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। वी हैव डन इट करेक्टली। एक्चुअली क्या है, ऑप्शन आप सुधार लीजिए, ये 50/3 आएगा। एक्चुअली क्या है, उन्होंने बुक में इसको सॉल्व किया है, इसको 10 सेंटीमीटर ले लिया और इस पूरी लेंथ को 15 सेंटीमीटर ले लिया, तो आंसर तो गलत आएगा ही ना। और जबकि क्वेश्चन में दिया गया है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। अब देखिए, हम एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक को कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको मेथड समझ में आ गई कि कैसे इसे किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। वी कैन इजीली मैनेज दीज क्वेश्चंस। अब देखिए, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर काम करने वाले हैं और हमारा हेडिंग है फोर्स ऑन कर्व्ड कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Important. This is a very important topic. अब देखिए, now consider a uniform magnetic field. I am showing here magnetic lines of forces and consider a curved conductor PQ. अब देखिए, एक मिनट, let me draw it very properly. This is Q, this is P, and the conductor carries the current I. Now let us join the ends of conductor. So this length is dl. This length is dl. इफेक्टिव लेंथ dl ही मानी जाएगी, तो हम लिखेंगे द फोर्स ऑन dl लेंथ ऑफ कंडक्टर is df equal to I dl cross b. Integrating you'll get force I dl cross b, dl cross b, integration limit p to q. So f will be I p to q dl integration क्रॉस b, तो हमें मिलेगा f इक्वल टू आई, dl को इंटीग्रेशन करेंगे p टू q, तो हमें मिलेगा वेक्टर pq क्रॉस b, pq क्रॉस b। pq क्रॉस b, ये तो इसका हो गया एक अप्रोच। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये आपको बता देते हैं।
अब देखिए पी क्यू इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो उसको कैसे निकालेंगे? पी से आप क्यू को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और फिर फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर नोटेशन है, बी साइन थीटा, where theta is the angle between PQ and B, where theta is the angle between PQ and B। आप इसे नोट कर लीजिए, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एरिया है। ओके, हैव यू नोटेड डाउन? वही अप्रोच है जो आपने पहले करी थी, उसमें कोई खास नया चेंज नहीं है। देखिए a current carrying semi circular loop, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, is placed in uniform magnetic field as shown, calculate the net magnetic force on it। और मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस की, क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सेमी सर्कल एंड इनवर्ट। अब हमें इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ लूप इज गिवन, is R, one end of loop is P, another end of loop is R। तो इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें P से Q को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस PQ क्या होगा, 2R होगा। डिस्टेंस PQ क्या होगा, 2R होगा। और ये जैसे PQ को स्टूडेंट ले लेते हैं इक्वल टू पाई R, दिस इज रॉन्ग। वी हैव टू टेक फर्स्ट एंड ऑफ वायर को सिलेक्ट करो, फिर लास्ट एंड ऑफ वायर को सिलेक्ट करो, दोनों को ज्वाइन करो, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो। अब फोर्स की वैल्यू निकाल लो, I 2R क्रॉस B, फोर्स I 2R B, R और B में एंगल देखिए, रेडियस और B में एंगल आप खुद देख लीजिए, रेडियस और B में, B कैसा है, इनवर्ट, और B R के प्लेन से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो फोर्स हो जाएगा I B इंटू 2R। ये करेक्ट है, और इसका रॉन्ग वर्जन है, रॉन्ग वर्जन है जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं कि फोर्स हो गया, बिल साइन थीटा लगा दिया इनटू पाई आर। दिस इज टोटली रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। अब फोर्स लगेगा कहाँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। ये देखो यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट ले लो, एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। आप अपनी इस फिंगर को, जहाँ कॉपी में आपने इसे बनाया होगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड फिंगर को रखिए, और ये करंट की फिंगर है, करंट की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखिए। तो आप देखेंगे लूप पर फोर्स कहाँ लगेगा, लूप पर फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इन द प्लेन ऑफ
इन द प्लेन ऑफ पेपर और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और अगर वेक्टर के नोटेशन से अगर भी हम इसको कर सकते हैं तो दिस इज द अप्रोच। ये कम से कम इट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन 20 times इन पेपर, एटलीस्ट इन ऑल पेपर्स। आपने इसे नोट कर लिया तो आप मुझे बता दीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई थिंक यू आर डन विद इट। देखिए, ये हमेशा ध्यान रखना आप इसको, जब भी आपको एक सेमी सर्कुलर किसी भी लूप पे आपको फोर्स निकालना है, तो जैसे ये देखिए आपका एक लूप है, ये ऐसे रखा हुआ है ये, और क्रॉस इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। या डॉट की मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। तो अगर आपको इससे फोर्स निकालना है तो आप सबसे पहले एक एंड ऑफ लूप को सिलेक्ट करिए, ये इसको करिए P, इसको करिए Q। फिर आप देखिए P और Q के बीच में तो फोर्स होगा IB इंटू PQ। उसके लिए आप ये लेंथ नहीं लीजिए, तो हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है। और फोर्स की डायरेक्शन तो आप हमेशा निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जॉइन द टू एंड्स ऑफ कर्व लूप, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको निकालो, और वो क्या होगा P और Q। P इज वन एंड ऑफ लूप एंड Q इज अनदर एंड ऑफ लूप। तो आपको सैंपल पेपर्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड यू कैन डू इट। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A current carrying circular coil is placed in uniform magnetic field as shown. The radius of circular coil is R and magnetic field is B. Find the net magnetic force on it. अब देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत जोरदार है। हम मान सकते हैं कि ये सर्कुलर कॉइल दो सेमी सर्कुलर कॉइल से मिलकर बनी है। आप इस बात को समझिएगा। वी कैन एज्यूम कि ये जो सर्कुलर कॉइल है ये दो सेमी सर्कुलर कॉइल से मिलकर बनी है। एक अपर पोर्शन हो गया और एक लोअर पोर्शन हो गया, और हम जानते हैं ये क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आप देखिए, अपर पोर्शन में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में,
और फोर्स की वैल्यू है हम जानते हैं आई बी इंटू टू आर। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड के फिंगर को अंदर रखो और ये करंट की फिंगर है, करंट में रखो तो फोर्स आपको ऐसा। अब नीचे वाली कॉइल पर आओ, मतलब कॉइल तो एक ही है, हमने माना कि वो कॉइल दो सेमी सर्कुलर कॉइल से मिलकर ही तो सर्कुलर कॉइल बनती है, तो ऊपर वाली कॉइल तो हमने देख ली। अब ये नीचे वाली कॉइल देखो आप, जो नीचे कॉइल है इसको देखिए आप, इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एफ बी आई, तो करंट ऐसे जा रही है। लगाइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, बी अंदर और ये करंट की फिंगर ऐसे करनी है, ये पता चला आपको? लगा के देखिए आप कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। कम ऑन, अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अपर पार्ट ऑफ, सॉरी अपर पार्ट ऑफ द कॉइल। यहाँ हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया। अब इस पोर्शन पे हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, करंट ऐसे जा रही है, देखिए, तो करंट वाली फिंगर आपको इस डायरेक्शन में रखनी है। ओके, प्लीज अप्लाई एफ बी आई। तो मैंने इसे अप्लाई किया तो मुझे पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एफ, और हम जानते हैं सेमी सर्कल पे फोर्स कितना होता है, आई बी इंटू टू आर। तो आप खुद बता दीजिए, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्चुअली इस तरह की कंडीशन बन गई कि अपर पार्ट पर फोर्स है आई बी टू आर और लोअर पार्ट पर फोर्स है आई बी टू आर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी क्लोज लूप, क्योंकि क्लोज लूप है, एक सिंगल सर्कल है, क्लोज लूप। अब क्लोज लूप के एग्जांपल हो सकते हैं सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, current carrying square coil is kept in magnetic field, current carrying rectangular coil is kept in magnetic field, current carrying hexagonal coil in magnetic field. What will be the force whenever any current carrying closed loop is kept in a uniform magnetic field, the net force on it is zero. पर देखिए इस कॉइल पर नेट फोर्स जीरो है, पर आप देख रहे हैं कि अपर पोर्शन ऊपर की तरफ खिंच रहा है और निचला पोर्शन, लोअर पोर्शन नीचे की तरफ खिंच रहा है, तो कॉइल इज एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेच हो रहा है। पर नेट फोर्स की बात करें फिजिक्स की लैंग्वेज में, नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो इसको हम अगली उसमें लिख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर नोट करिए। मैग्नेटिक फोर्स on any closed loop in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, uniform magnetic field acting, ये भी कंडीशन, acting perpendicular to plane of loop, to plane of loop is always zero, is always zero. Example number one, net force zero, rectangular coil, net force जीरो, क्लोज लूप। तो आपने इसे लिख लिया, क्लोज लूप होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। दो कंडीशन होनी चाहिए, पहली, लूप शुड बी क्लोज, शुड बी क्लोज लूप।
दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, टू द प्लेन ऑफ लूप। ये दो बातें फुलफिल होंगी तभी हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तभी हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स क्या है, जीरो है। और देखिए, मैं वापस आपको पिछली स्लाइड पे ले जाना चाहता हूँ। ये आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई करें अपर पोर्शन में और लोअर पोर्शन में, क्योंकि जब तक आप इसे खुद करके नहीं देखेंगे, जब तक आप इसे खुद करके नहीं देखेंगे, तब तक आप हम इसे पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो इफ यू आर डन विद इट, टेल मी। आपने इसे नोट कर लिया? ओके, तो इसे एंड कर रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू derivation number 1, magnetic field on the axis of a current carrying coil। एक, दूसरा हम करेंगे एम्पियर्स लॉ। फिर एम्पियर लॉ को हम सर्कुलर कॉइल पे अप्लाई करेंगे और एक सोलेनोइडल कॉइल पे भी अप्लाई करेंगे। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट स्टूडेंट्स। आई एम टेकिंग सो मेनी नंबर ऑफ बैचेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नेट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है आजकल, ये तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास एटलीस्ट 3 डेरिवेशंस, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे।